This is an optical instrument, and with the help of this instrument we can find the focal length of a convex lens or concave mirror or convex mirror. And you can see the uprights on this bench. This is candle which acts an object, and this stand or this upright is used to install the lens, and last one is screen. And we can find the position of these uprights on the scale. You can see this rod is calibrated in centimeter scale. Now you can easily visualize the scale, and this rod is calibrated in centimeter. This white line gives the position of the object or candle on the scale. You can see this white line coincides with the 0. It means position of the candle or object on this bench is at 0. Similarly, we can find the position of the lens. You can see it is a convex lens. This white line gives the position of the lens on the optical bench, and you can see it is at 45 centimeter. The position of the candle is at 0 and position of lens on the rod is at 45 centimeter. It means the distance between object and lens is 45 centimeter, which is taken as U in lens formula. And this one is screen, white surface, and position of the screen you can see it is at 70 centimeter. It means the position of the screen on the optical bench is at 70 centimeter. Now the gap between screen and lens is 70 minus 45, which is equal to 25, and it is known as distance V in lens formula. By using the lens formula, we can find the focal length of this convex lens. So it is the working of the optical bench. अब मैं इसमें ऑब्जेक्ट दैट इज कैंडल और लेंस के बीच का डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर ले रहा हूं मैं. दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस इज 25. दैट इज U equal to 25. Now you can see the image of the candle on the screen, but this image is not clear. Now by adjusting the position of the screen, we can form a clear image. जिस पोजीशन में इमेज बिल्कुल क्लियर होगी वहां पे हम इसको रोकेंगे. आप देखें इस पोजीशन में जो कैंडल की इमेज है वो बिल्कुल क्लियर इमेज आप देख सकते हैं. इसमें ये कैंडल और ये लेंस और ये इसकी क्लियर इमेज. अब आप इसमें नोट कर सकते हैं इसकी जो पोजीशन है, दिस इज 65, 66, 66.1 and nearly 66.2. That is position of the screen is at 66.2. That is position of the screen is at 66.2 and position of the lens is at 25. Difference of these two readings gives the image distance V. That is 66.2 minus 25. That is image distance is 41.2. V equal to 41.2 and U equal to 25. Then by using the lens formula 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F, and by using the sign convention we can find the focal length of the lens. अब हम लेंस की रफ फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं. देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U 25 और इमेज डिस्टेंस 41.2, और लेंस फॉर्मूला से जब हम देखते हैं तो इसकी फोकल लेंथ आ रही है नियरली 15.56 सेंटीमीटर, एंड इट इज़ रफ फोकल लेंथ. And 4 times of the focal length is nearly 62 centimeter. Rough focal length which is nearly 15.56 centimeter. That is focal length of this lens is roughly 15.56 centimeter. But today we will discuss the displacement method. In displacement method we know that if the distance between object and screen is less than 4f, यानी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ जो 15.56 का 4 टाइम्स आप कर लें तो जो नियरली 62 सेंटीमीटर होगा. यानी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 62 सेंटीमीटर से अगर कम है
तो आप स्क्रीन पे लेंस की किसी भी पोजीशन के लिए रियल इमेज आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ले रहा हूं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 50 सेंटीमीटर विच इज लेस देन 4f। In this situation, we cannot create real image for any position of this lens. You can see on the screen. देखिए किसी भी पोजीशन में आप रियल इमेज को स्क्रीन पे आप नहीं बना सकते, यानी इमेज जो है क्लियर इमेज स्क्रीन पे क्रिएट नहीं होगी। एंड सेकेंड केस इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ, दैट इज कैंडल टू स्क्रीन इज 4 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ विच इज 62.2। अगर मैं इसको 62.2 पे एडजस्ट कर देता हूं तो आप देखेंगे इस सिचुएशन में केवल लेंस की एक ही ऐसी पोजीशन होगी जिस पे आप रियल इमेज क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज 60, 61, 62 एंड नियरली 62.2। तो आप देखेंगे वो पोजीशन आएगी d/2 पे। d/2 मीन्स 31.1। तो आप यहां देख सकते हैं एक क्लियर इमेज। देखिए यहां इमेज ब्लर होगी, यहां इमेज क्लियर है 31.1 पे, और उसके आगे कोई भी इमेज आप रियल इमेज क्रिएट नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे यहां पे आप एक कैंडल की क्लियर इमेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पर लेंस की और किसी भी पोजीशन के लिए आप इस टाइप की इमेज क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मैं इस पोजीशन में लेंस को किसी भी डायरेक्शन में मूव करूंगा तो ये इमेज ब्लर हो जाएगी, और ये वो पोजीशन होगी, और यहां से आगे करें फिर इमेज क्लियर होगी। तो एक ही ऐसी पोजीशन है जहां पे आप रियल इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अब थर्ड सिचुएशन को देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 4f है, candle to screen is greater than 4 times of the focal length and focal length is nearly 15.56, that is greater than 62.2। तो मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन को 80 सेंटीमीटर पे ले रहा हूँ, एंड 80 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन द 4f। इस सिचुएशन में आप लेंस की दो पोजीशन के लिए रियल इमेज क्रिएट कर सकते हैं, विच इज एग्जैक्टली एट 80 centimeter. In this situation, we can create two real images for the two position of the lens. First position is L1 and second position is L2. अब लेंस को अपने एडजस्ट करते हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए, फॉर पोजीशन L1। In this position the image is clear। अब हम लेंस की पोजीशन नोट करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये 21 सेंटीमीटर पे। अब हम लेंस की दूसरी पोजीशन निकालते हैं जहां ये इमेज फिर से क्लियर हो। देखिए इस पोजीशन में इमेज ब्लर हो चुकी है, और लेंस को आप आगे मूव करते जाएं और एक ऐसी नई सिचुएशन आएगी जहां इसकी रियल और छोटी इमेज फिर से क्रिएट होगी। आप देखें कि ये इमेज क्लियर होती जा रही है इसमें, और इस पोजीशन हम देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर इमेज है वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये इमेज पहले से छोटी इमेज होगी पर इमेज इज क्लियर। दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ द लेंस एट विच वी कैन सी द रियल इमेज, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज ग्रेटर देन 4f, then there will be two position of the lens for which we can create the two real images। और हम इस पोजीशन को नोट करते हैं कि ये पोजीशन कहां पे है।
ये 55 है, ये लाइन 56 है, ये 57 है और ये 57.2 ले सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन 0 पे और स्क्रीन की पोजीशन 80 सेंटीमीटर, दैट इज कैपिटल D इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। फर्स्ट पोजीशन में जो रियल इमेज है उसमें लेंस की पोजीशन जो L1 थी वो 21 सेंटीमीटर और सेकंड पोजीशन में रियल इमेज है वो थी 57.2। तो देखो इन दो रियल इमेजेस के लिए आपने लेंस को कितना डिस्प्लेस किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल d है वो होगा 57.2 माइनस 21 और ये है 36.2। अब इस फॉर्मूले से आप इस लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कैपिटल D 80 सेंटीमीटर एंड स्मॉल d 36.2, ये वैल्यूज पुट करके अपने अगर फाइंड आउट करते हैं तो एग्जैक्ट फोकल लेंथ जो इस लेंस की है वो 15.9 सेंटीमीटर है। और दिस इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। थैंक यू।